we applied a force on a block, then we can find out the maximum elongation in the spring by the using of center of mass. Let there are two blocks, M1 and M2. The natural length of the spring is L0 and K is the spring constant. Let a force F applied on the block M2. Then acceleration of M2 is F by M2. Acceleration of M2 is F by M2. Then acceleration of M1 is 0. हमें स्प्रिंग का मैक्सिमम एलोंगेशन निकालना है, तो now I find out the acceleration of center of mass is equal to M1 A10 and M2 F by M2 कट जाएगा F upon M1 plus M2. This is the acceleration of center of mass. Now acceleration of M2 with respect to center of mass, that is F upon M2 minus F upon M1 plus M2, that is M1 F upon M1 plus M2 into M2. That is acceleration of M1 with respect to center of mass is 0 minus F upon M1 plus M2, that is minus of F1 upon M upon M1 plus M2. M1 M2. Then acceleration of this M2 with respect to center of mass is M1 F upon M1 plus M2 into M2. Or acceleration of M2 with respect to center of mass is F upon M1 plus M2. अब दोनों ब्लॉक के ऊपर एक्सीलरेशन है, तो दोनों ब्लॉक को फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी M2 पर M1F upon M1M2. This force is applied on the M2 with respect to center of mass and M1 के ऊपर M1F upon M1 plus M2. अब आप यहाँ देख सकते हैं कि M1 को एक फोर्स ले जा रहा है उधर, M2 को एक फोर्स लेके आ रहा है इधर. लेट X1 M1 को आगे लेके आता है फोर्स, और M2 आता है X2. It means maximum elongation in spring is X1 plus X2. Work done by this force on M1. Work done by force on M1 is X1 into force. Like that, work by this force on M2 is equal to
into m1 upon m1 plus m2. इस प्रकार आप देख सकते हैं कि m2 पर फोर्स लग रहा है इधर और m1 पर फोर्स लग रहा है उधर, और दोनों फोर्स का वर्क निकाल लिया x1 और x2 के लिए। तो स्प्रिंग के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वर्क डन बाय द बोथ द फोर्सेज होगी। तो बाय द वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय द फोर्स m1, वर्क डन बाय द फोर्स this plus work done by the force this is equal to change in potential energy. You can write WF M1 plus WF M2 is equal to 1 by 2k x1 plus x2 का whole square. Now keep the values and find the answer. You can see that M1F upon M1F2 कॉमन आ जाएगा और अंदर बच जाएगा x1 plus x2 that is 1 by 2k x1 plus x2 का whole square. Now you can see that x1 plus x2 is 2 by k m1f upon m1 plus m2. So the maximum elongation in the spring is x1 plus x2 that is 2 by k m1f upon m1 plus m2. इस प्रकार आप देख सकते हैं कि बाय द यूज ऑफ सेंटर ऑफ मास वी कैन फाइंड आउट द मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग. हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पढ़ा था जिसमें एक स्प्रिंग की और दो ब्लॉक थे. उसमें हम लोगों ने फर्स्ट फॉर्मेट, सेकंड फॉर्मेट और थर्ड फॉर्मेट पढ़ा था. आज हम स्टडी करने वाले हैं इम्पल्स की. इम्पल्स, अब व्हाट इज द इम्पल्स, इम्पल्स होता क्या है सबसे पहले हम ये समझेंगे. द डेफिनेशन ऑफ द इम्पल्स is given that a force F is acting for the time t1 to t2. Force F is acting for t1 to t2. Then definition of the impulse, I is equal to F dt t1 to t2. We know that F is equal to dp by dt. Then F dt is equal to dp इंटीग्रेशन साइन दोनों तरफ. दिस इज द चेंज इन मोमेंटम, दिस इज द इम्पल्स. तो इन दोनों को कंपेयर करने पर वी विल गेट इंटीग्रेशन ऑफ dp, that this is p initial, this is the p final. Then you can write the impulse is t1 to t2 f dt is equal to p initial to p final dp, that is p final minus p initial, that is delta p. It means impulse is nothing but it is the change in momentum. t1 से t2 टाइम तक यदि कोई फोर्स
किसी पार्टिकल पर एक्ट कर रहा है तो उसके मोमेंटम में चेंज आएगा P फाइनल से P इनिशियल। दैट इज चेंज इन मोमेंटम। इस मोमेंटम को चेंज होने में कुछ टाइम लग रहा है, वह टाइम है T1 से T2, मतलब कोई फाइनाइट टाइम है, डेल्टा T टाइम है। तो वी कैन कैलकुलेट द इम्पल्स दैट इज द डेल्टा P। चेंज इन मोमेंटम हमें पता होगा तो हम आराम से इम्पल्स निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं कि इस इम्पल्स की जरूरत क्यों पड़ी हमें। तो आपने देखा जब किसी एक पार्टिकल के ऊपर आपने फोर्स लगाया T1 टाइम से T2 टाइम तक, तो उसके मोमेंटम में चेंज आया। उस मोमेंटम में चेंज आने की वजह से हमने इस क्वांटिटी को इम्पल्स कहा। अब यहां पर टाइम ज्यादा था तो F डेल्टा डी। अब मान लो टाइम कम होता, बहुत कम टाइम, कितना कम टाइम की वी कैन नॉट कैलकुलेट द टाइम। वी कैन नॉट कैलकुलेट द टाइम। हाउ इट इज पॉसिबल to find out the impulse? Now instantaneous impulse. इंस्टेंटेनियस इम्पल्स यह क्या होता है? आई इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू एफ डी टी, दैट इज चेंज इन मोमेंटम P फाइनल माइनस P इनिशियल। लेकिन यहां पर जो चेंज इन मोमेंटम का टाइम है वह बहुत कम टाइम है। कहते हैं यदि कोई बॉल किसी ग्राउंड पर रखी हुई है तो इसके मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आ रहा है, 1 kg न्यूटन, और इसका mg फोर्स जो नीचे की तरफ लग रहा है वह है 10 न्यूटन। अब लेट बॉल को आपने ऊपर छोड़ा, बॉल नीचे आएगी, बॉल टकराएगी यहां पर आने के बाद, यहां कोलिजन होगा। जैसे ही बॉल को आपने रिलीज किया, बॉल कम्स डाउन एंड स्ट्राइक टू ग्राउंड। जैसे ही बॉल ने स्ट्राइक किया, बॉल वापस ऊपर जाएगी। लेट V initial and V final। तो यहां पर जो मोमेंटम चेंज हो रहा है उसमें बहुत कम टाइम लग रहा है। पहले जो मोमेंटम था, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉल इज, लेट m is the mass of ball, initial momentum of ball is m V initial, final momentum of ball is m V final, then in change in momentum is P final minus P initial, that is m V final minus V initial। अब मान लो चेंज इन मोमेंटम में बहुत कम टाइम, यानी डेल्टा टी टाइम,
बहुत कम है, लेट डेल्टा टी इज 10⁻³ सेकेंड है, तब आप देखेंगे कि जो आपका फोर्स हो जाएगा वह हो जाएगा F इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, दैट इज m v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन 10⁻³ सेकेंड. इट मीन्स F is equal to m (10⁻³ सेकेंड. आप देख सकते हैं कि इस फोर्स की वैल्यू एक mg फोर्स है, बहुत ज्यादा है. इस mg फोर्स है, इस फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है. इट मीन्स यदि कोई बॉल ग्राउंड पर रखी हुई है तो उसका केवल 10 न्यूटन फोर्स रहेगा, और यदि कोई बॉल ऊपर से छोड़ जाएगी, आगे टकराएगी, टकरा कर वापस जाएगी, तो जब मोमेंटम में चेंज आया, और जब मोमेंटम में चेंज जब बहुत कम समय के लिए आता है तो वह ग्राउंड के ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स लगाती है. और यहां पर हमने देखा कि यदि डेल्टा टी का टाइम 10⁻³ सेकंड है, इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड. हमने थोड़ा सा मान लिया, ओके 1 सेकंड तो नहीं हो सकता है, 1 सेकंड तो बहुत ज्यादा टाइम होता है, 1 सेकंड से कम ही होगा. तो 10⁻³ सेकंड टाइम आया, उसको यहाँ पर देखा तो फोर्स जो आया वो बहुत भयानक फोर्स आया. ये फोर्स, इस फोर्स की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज बहुत ज्यादा है. सो डेट इस फोर्स को हम कहते हैं इंपल्सिव फोर्स. दिस फोर्स इज कॉल्ड एज द इंपल्सिव फोर्स. तो इंपल्सिव फोर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चेंज इन मोमेंटम चाहिए और डेल्टा टी टाइम चाहिए, लेकिन डेल्टा टी टाइम हमारे पास होता नहीं है. डेल्टा टी टाइम हमारे पास होता नहीं है, तो हम लोग केवल इंपल्स निकालते हैं. इंपल्स दैट इज अ चेंज इन मोमेंटम. नेक्स्ट एक यहां पर देखिए आप, चेंज इन मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है. सो डेट इंपल्स इज आल्सो है वेक्टर क्वांटिटी. इंपल्स के बारे में कुछ पॉइंट्स. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. फर्स्ट, impulse is a vector quantity. Second, impulse is change in momentum. Impulse is change in momentum. Third, unit of impulse is, जो मोमेंटम यूनिट होगी वही इंपल्स की यूनिट होगी, यानी कि केजी इंटू मीटर पर सेकेंड. फोर्थ, the dimension of impulse is
डायमेंशन ऑफ इम्पल्स इज ml t minus 1. The dimension of impulse is ml t minus 1. इस प्रकार आप इंपोर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इम्पल्स के बारे में। अभी मैंने आपको बताया कि इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है। इम्पल्स चेंज मोमेंटम है। अब इम्पल्सिव फोर्स के बारे में थोड़ी देर पहले थोड़ी जानकारी दी, कुछ अच्छे से एग्जांपल देखते हैं इम्पल्सिव फोर्स के बारे में। इम्पल्सिव फोर्स, जैसे मैंने बताया अभी आपको कि F इक्वल टू dt बाई dt। एक छोटा सा एग्जांपल लिया था हमने कि एक बॉल इज स्ट्राइकिंग ऑन ए ग्राउंड with initial velocity 5 meter per second and mass of ball is 1 kg. Then initial momentum of ball is 5. Let जब बॉल ग्राउंड में टकराती है और वापस ऊपर जाती है तो वेलोसिटी ऑफ बॉल इज 4 मीटर पर सेकेंड। Then final momentum is 4. The duration of collision, जब बॉल और ग्राउंड कांटेक्ट में रहेंगे, टाइम ऑफ द व्हेन कांटेक्ट बिटवीन बॉल एंड ग्राउंड इज डेल्टा टी, दैट इज 10⁻³ जो कोलिजन रहता है वह केवल 10⁻³ सेकंड के लिए देता है। देन फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम P फाइनल माइनस P इनिशियल, दैट इज 9 बाय 10⁻³ यानी 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जब बॉल नीचे रखी हुई थी तो केवल 10 न्यूटन फोर्स लगा सकती थी, लेकिन जब बॉल को ऊपर छोड़ा गया तो छोड़कर बॉल, जैसे आपने बॉल को ऊपर छोड़ा और इसके मोमेंटम में चेंज आया तो उसने एक भयानक फोर्स लगाया, मतलब F इजिकल टू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। इस फोर्स को कहते हैं इम्पल्सिव फोर्स। छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। जैसे किसी बॉलर ने बॉल को फेंका और बैट्समैन ने बॉल को जोर से बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया, तो वह उस बॉल को बाउंड्री के बाहर कैसे पहुंचा पाया? क्या उसमें इतनी ताकत थी? नहीं। जब जैसे ही बॉल बैट के टकराई तो उस समय जो कोलिजन का टाइम था वह बहुत कम था, 10⁻³ सेकेंड। और जितना कम टाइम होगा 10⁻⁴ सेकेंड, जितना कम टाइम होगा चेंज इन मोमेंटम उतना ज्यादा होगा और फोर्स में उतना ही ज्यादा फोर्स होगा। जितना ज्यादा फोर्स वो उतना ज्यादा चेंज इन मोमेंटम बॉल में ला सकता है और बॉल को बाउंड्री के बाहर फेंक सकता है। अब इसी एग्जांपल को हम लोग अलग तरीके से लेते हैं। कैसे? जैसे लेट कि इस भयानक फोर्स से कैसे बचा जा सके। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं इस फोर्स का। मान लो आपने अपने सिर के ऊपर कुछ एक छोटा सा पत्थर रखा हुआ है 10 kg या 1 kg का। 1 kg से आपको कितना फोर्स लग रहा है? 10 न्यूटन का, तो आप आराम से रख पा रहे हो। लेकिन यदि किसी ने इस 1 kg के पत्थर को थोड़ा ऊपर ले जाकर छोड़ दिया तो क्या आपका सिर फट जाएगा? हाँ। तो पहले 10 न्यूटन तो आपका सिर फट नहीं रहा था, लेकिन जब जैसे ही ब्लॉक को ऊपर से ले जाकर छोड़ दिया गया तो आपका सिर फट जाएगा। हाँ, एग्जैक्ट। तो जो फोर्स लगाया वो फोर्स आया F, जो कि वो भयानक फोर्स था। इसे कहते हैं इम्पल्सिव फोर्स। अब इस फोर्स से बचने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है तो देखते हैं। मान लो किसी ने एक बॉल
थ्रो की बहुत दूर से। जैसे बॉल थ्रो की, तो जब हम कैच करते हैं बॉल को, तो क्या हमारे हाथ हम ऐसे रखते हैं बस। जैसे हमने हमारे हाथ ऐसे रखे तो बॉल हमारे पास आई, बॉल आती हम लोगों ने हाथ में उसको कैच कर लिया, तो मतलब उसके मोमेंटम में हम लोगों ने चेंज लेके आए। तो क्या अचानक से चेंज लेके आए? जब बॉल आई थी 5 मीटर पर सेकंड से, जैसे आपने फाइनल इनिशियल मोमेंटम 5 मीटर पर सेकंड, बॉल का मास 1 है, तो इनिशियल मोमेंटम हो गया 5 kg मीटर पर सेकंड। फाइनल मोमेंटम हो गया उसका 0। एकदम से तो फाइनल मोमेंटम कितना हो गया? 0। उसके मोमेंटम के चेंज में टाइम कितना लगा? 10 की पावर -3 सेकेंड। जब मोमेंटम में चेंज मोमेंटम में टाइम बहुत कम लगा, तो आपके हाथ के ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा, तो आपके हाथ की उंगलियां टूट सकती है। आपके हाथ की उंगलियां टूट सकती है। मतलब एग्जाम्पल देते, छोटा सा एग्जाम्पल है। बॉल यहां से आई 5 मीटर पर सेकंड से 1 kg की बॉल थी। जैसे बॉल आई, टकराई आपके हाथ से, ये हेड मान लें आप, तो बॉल की फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। तो चेंज मोमेंटम जो हुआ वह कितना हुआ? केवल 5। इस चेंज मोमेंटम में जो टाइम आया वो आया 10 की पावर -3 सेकेंड। देन एफ फोर्स आ गया आपके पास 5 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन। यू कैन से जो 1 kg की बॉल थी वह केवल 10 न्यूटन फोर्स लगा सकती थी, लेकिन यहाँ देखें आप, जो फोर्स आया वो भयानक फोर्स है। 5 इंटू 10 की पावर थी, मतलब 5000 न्यूटन फोर्स, 5000 न्यूटन फोर्स, जो आपकी उंगलियों को तोड़ने के लिए सफिशिएंट है। तो इस फोर्स से कैसे बचा जाए? अब आपको ध्यान में आ रहा होगा कि बॉल की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है और फाइनल वेलोसिटी 0 है, ये तो आपको करना ही है। लेकिन क्या आप टाइम लगा सकते हैं 0 होने में? इसके मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है, जो कोलिजन हो रहा है, उसमें टाइम लगाइए। कैसे? जैसे बॉल आपके पास आई, आपने क्या किया, आपके हाथ में आते हैं 5 मीटर पर सेकंड से, आपने एकदम से अपने हाथों को भी धीरे धीरे पीछे लेके, मतलब तो फोर्स लगा रहे हैं अपने हाथों से भी और अपने हाथों को भी पीछे लेके आ रहे हैं। मतलब बॉल का मोमेंटम एकदम से 0 नहीं हो रहा है, और कुछ समय बाद 1 सेकंड बाद बॉल का मोमेंटम 0 हो रहा है। तो कोलिजन का समय है। जैसे बॉल आई, आपके हाथों को टकराई, कोलिजन चालू हो गया, कंटिन्यू कोलिजन है, यहां तक कोलिजन रहेगा, और जैसे बॉल की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो क्या इस कोलिजन का समय और इस कोलिजन का समय में डिफरेंस होगा? मान लो ये नेक्स्ट एग्जांपल में जो कोलिजन का टाइम आया वह टाइम है t = 1 सेकेंड। तो चेंज इन मोमेंटम कितना? 5 kg मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना आया? 1 सेकेंड। तो सेकंड केस में जो फोर्स लगेगा वह लगेगा आपका 5 न्यूटन। तो आप देख सकते हैं कि यदि आप बॉल को 1 सेकंड में रोकेंगे तो केवल 5 न्यूटन का फोर्स आपकी उंगलियों पर लगेगा, और जब आप बॉल को 10 की पावर -3 सेकंड में रोकने की कोशिश करेंगे तो आपकी उंगलियों के ऊपर फोर्स जो लगेगा वह लगेगा 5 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन फोर्स, जो आपकी उंगलियों को तोड़ने के लिए पर्याप्त है। लेकिन आपका हाथ F = 5 न्यूटन फोर्स को सहन कर पाएगा। इसीलिए कोई भी बॉलर जब भी बॉल को कैच करता है तो अपने हाथ को पीछे लेकर जाता है, अपने हाथ को पीछे लेकर जाता है। ऐसे कई और एग्जाम्पल है। जैसे मान लो कोई छत से कोई आदमी नीचे कूदता है, इफ ए मैन इज जंप फ्रॉम ए टावर ऑन ए स्टोन ग्राउंड, तब क्या होगा? उसके मोमेंटम में चेंज अचानक से आएगा और उसके पैर लेग्स टूट जाया करते हैं। लेकिन यदि मान लो नीचे कहीं स्टैंड पड़ी हो और जब आदमी ऊपर टावर से कूदेगा नीचे, तो उसके मोमेंटम में चेंज एकदम से नहीं आता है, उसके मोमेंटम में चेंज एकदम से नहीं आता है, तो उसके पैर टूटने से बच जाते हैं, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम का टाइम बढ़ जाता है। टाइम बढ़ने से फोर्स कम हो जाता है, और फोर्स जैसे ही आपके पैरों पे कम हो जाएगा तो आपकी हड्डियां टूटने से बच जाएगी। तो इम्पल्स का दैनिक लाइफ में, रोज डेली लाइफ में बहुत ज्यादा उपयोग है। इम्पल्सिव फोर्स कौन कौन से हो सकते हैं, हम इसे देखते हैं। हमारे प्रॉब्लम में इम्पल्सिव फोर्स कहां कहां पर लगते हैं और कहां कहां पर काम में आते हैं,
Let's take example. Impulsive force. क्या नॉर्मल फोर्स इम्पल्सिव हो सकता है? क्या टेंशन फोर्स इम्पल्सिव हो सकता है? क्या फ्रिक्शन फोर्स इम्पल्सिव हो सकता है? तो हम लोग वन बाय वन लेते हैं कि क्या ये फोर्सेज इम्पल्सिव हो सकते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल, लेट वन ब्लॉक कोलाइड टू अनदर ब्लॉक. जब दोनों ब्लॉक एक दूसरे से कोलिजन करेंगे तो क्या दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा एन इधर और एन इधर. क्या यह बहुत कम समय के लिए लगेगा? क्योंकि जैसे यहाँ पर स्ट्राइक होंगे, दोनों कोलिजन होगा, ये वापस अपनी कुछ ना कुछ वेलोसिटी लेकर आगे ये इधर बढ़ जाएगा, ये इधर बढ़ जाएगा. तो यहाँ पर दिस नॉर्मल फोर्स इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स. जो भी फोर्स बहुत कम समय के लिए लगेगा, दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स. अब आप देख रहे होंगे सर कि यहाँ पर नॉर्मल एक और लग रहा है N1. इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? तो N1 इज नॉन इम्पल्सिव फोर्स. नॉन इम्पल्सिव फोर्स क्योंकि N1 की वैल्यू केवल mg के बराबर होगी और यहाँ पर जो कोलिजन हो रहा है उसके अंदर टाइम खूब है. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. किसी बॉल को ऊपर से छोड़ा और बॉल वापस नीचे आई पहले और फिर बॉल कोलिजन के बाद ऊपर जाएगी. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है ऊपर एन और ग्राउंड पर लग रहा है एन नीचे. कोलिजन बहुत कम टाइम के लिए हो रहा है. सो डेट दिस एन इज impulsive, this n is non-impulsive force. This n is non-impulsive force. और एग्जाम्पल देखते हैं कि सॉरी दिस इज ए इम्पल्सिव फोर्स बिकॉज कोलिजन बहुत कम समय के लिए हो रहा है भाई. दिस इज ए इम्पल्सिव फोर्स. नेक्स्ट, जब भी कोलिजन बहुत कम समय के लिए होगा तो उसमें इम्पल्सिव फोर्स लगेंगे. थर्ड, यहां ध्यान से देखिए आप, यह बॉल V1 से आगे जा रही है और V2 से अंदर आ रही है. दोनों में आपस में कोलिजन होगा तो क्या कॉन्टैक्ट सरफेस ये होगी? तो जो नॉर्मल लगता है वह कॉन्टैक्ट सरफेस के लोग लगता है. ये छोटी वाली बॉल इसके ऊपर नॉर्मल इधर लगा देगी N1 और बड़ी वाली बॉल इस पर इधर लगा देगी N2. आप देख सकते हैं यहां पर दिस इज N3, दिस इज N4. अब बताइए यहां पर N1, N3 और N4 इनमें से कौन सा इम्पल्सिव फोर्स होगा और कौन सा नॉन इम्पल्सिव फोर्स होगा? तो आप देख सकते हैं कि N1 तो इम्पल्सिव फोर्स है ही सही क्योंकि कोलिजन के टाइम में बहुत कम टाइम लगता है. तो N1 इज इम्पल्सिव फोर्स. अब देखते हैं N3 इम्पल्सिव है या नहीं है. तो वो ध्यान से देखने पर आपको पता लग रहा होगा कि N3 भी इम्पल्सिव फोर्स है. क्यों? क्योंकि N1 जो इम्पल्सिव फोर्स है उसका एक कंपोनेंट N3 के अंदर सामने आ रहा है. सो डेट N3 इज इम्पल्सिव फोर्स. नेक्स्ट, सॉरी N4 इम्पल्सिव है या नहीं. आप देख सकते हैं
कि n4 जो ऊपर लग रहा है, इस n4 किसकी वजह से आ रहा है, n1 जो इम्पल्सिव फोर्स है mg माइनस n1 इम्पल्सिव फोर्स विल गिव द n4, तो क्या n4 कम हो जाएगा, तो आराम से आप कह सकते हैं कि n4 इज ए नॉन इम्पल्सिव n4 इज ए नॉन इम्पल्सिव फोर्स है। अब आप देख सकते हैं आसानी से यहाँ पर n1 n3 एंड n4 के अंदर कि n1 इम्पल्सिव फोर्स है, n3 भी इम्पल्सिव फोर्स है और n4 नॉन इम्पल्सिव फोर्स हुआ। अब मैं फ्रिक्शन फोर्स की बात कर लेता हूँ यहीं पर ही आपसे कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो इम्पल्सिव है या नॉन इम्पल्सिव है। यहाँ पर फ्रिक्शन मान लो कहीं पर इधर लग रहा है लेग और यहाँ पर फ्रिक्शन इधर लग रहा है F1 F2, तो F1 को लिखूंगा मैं म्यू n4 और F2 को लिखूंगा मैं म्यू n3। आप आसानी से देखकर कह सकते हैं कि इफ n4 इज ए इम्पल्सिव फोर्स देन F1 विल बी आल्सो इम्पल्सिव, लेकिन यहाँ पर देखने में पता लग रहा है कि n4 नॉन इम्पल्सिव फोर्स है, सो डेट फ्रिक्शन फोर्स इज आल्सो ए नॉन इम्पल्सिव फोर्स। n3 जो इम्पल्सिव फोर्स है उसे देखने पर पता लग रहा होगा आपको कि F2 भी यहाँ पर एक इम्पल्सिव फोर्स हो जाएगा, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं F2 तो इम्पल्सिव है और F1 नॉन इम्पल्सिव। F2 is impulsive force and F1 is non impulsive force. F1 is non impulsive force while F2 is impulsive force. इस प्रकार आपने देखा कि N1 और नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स के बारे में तो हम बता सकते हैं कि कौन सा इम्पल्सिव है कौन सा इम्पल्सिव नहीं है। अब हम देखते हैं कि टेंशन फोर्स किस केस में इम्पल्सिव हो सकता है। टेंशन के लिए हम लोग छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि टेंशन फोर्स किस केस में इम्पल्सिव हो सकता है। मान लो एक स्ट्रिंग से एक ब्लॉक लटका हुआ है, या नीचे mg लग रहा होगा, ऊपर टेंशन लग रहा होगा। यस, इस समय आप देख सकते हैं कि टेंशन की वैल्यू केवल mg के बराबर है, सो टेंशन इज नॉट इम्पल्सिव। इफ बॉल 1 strike to m mass block, then you can say normal force जो लग रहा है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहां पर टेंशन फोर्स इम्पल्सिव होगा या नहीं होगा, तो फॉर दिस टेंशन फोर्स विल नॉट बी इम्पल्सिव, टेंशन इज नॉन इम्पल्सिव। फर्स्ट केस में, इस केस में टेंशन होगा नॉन इम्पल्सिव। नेक्स्ट, if ball strikes from here, अब आप देख सकते हैं कि नॉर्मल की डायरेक्शन ये है और इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये mg के साथ जुड़कर टेंशन t को इम्पल्सिव बना देगा, और बिकॉज द नॉर्मल इज इम्पल्सिव सो डेट टेंशन इज आल्सो इम्पल्सिव। इन थर्ड केस
यू कैन सी दैट कि नॉर्मल की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी बस, और यहाँ पर नॉर्मल का एक कंपोनेंट p की डायरेक्शन में आएगा, नॉर्मल का एक कंपोनेंट p की डायरेक्शन में आएगा, यह t को कम करेगा, सो t इज नॉन इम्पल्सिव। इस प्रकार देख सकते हैं कि आप अलग अलग केस में, किस केस में टेंशन इम्पल्सिव होगा, किस केस में टेंशन नॉन इम्पल्सिव होगा, आप आसानी से जज कर सकते हैं। यदि टेंशन की अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, इम्पल्सिव नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, तो टेंशन इम्पल्सिव हो जाएगा। यदि टेंशन की डायरेक्शन में ही इम्पल्सिव नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, तो टेंशन नॉन इम्पल्सिव हो जाएगा। और यहाँ पर नॉर्मल फोर्स जो कि इम्पल्सिव फोर्स है, वह टेंशन में कोई भी अपना पार्ट कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है। Last example for this impulsive force. You can see here a block of mass m and another block of mass m. This block A and this block is B. Both blocks are tied with a string. A bullet is fired with a speed v. The mass of bullet is also small m. Now bullet is fired and strike with small m. Then find out the final velocity of the system. In second case, after striking the bullet with small m mass, the velocity of system is let v dash. जैसे ही बुलेट इस स्मॉल एम मास में स्ट्राइक कर जाएगी, पेनिट्रेट कर जाएगी, तो बुलेट स्मॉल एम मास पर ब्लॉक पर कैपिटल एन लगा देगी, और यह एक इम्पल्सिव फोर्स है और यहाँ पर टेंशन भी एक इम्पल्सिव फोर्स होगा, तो दिस टेंशन विल आल्सो द इम्पल्सिव। बुलेट के ऊपर एन पीछे की तरफ लग जाएगा, N. Now apply the impulsive force on A, B block and the bullet. So on A, T dt, that is, you can say P final minus initial, so P final is mv dash P initial is 0, equation number 1. For V, on B, n minus t dt is equal to n minus t dt is equal to P final minus P initial. P final is mv dash P initial is 0, equation number 2. आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर नेट फोर्स की डायरेक्शन आगे की तरफ है। On bullet, only normal force is applied on bullet is n dt, लेकिन नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन पीछे की तरफ है। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक इज mv, फाइनल इज mv डैश माइनस mv, इक्वेशन नंबर 3।
एक बार फिर से देख ले, इम्पल्स ऑन ए ब्लॉक टी डी टी एम वी डैश, इम्पल्स ऑन बी ब्लॉक ऑन बी in minus TDT mv dash minus 0 and impulse on bullet is ndt mv dash minus mv, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा ड्यू टू द इम्पल्स की डायरेक्शन अपोजिट है। बाय सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3, बाय सॉल्विंग 1, 2 and 3, we will get 3 mv dash बराबर mv, m से m कट जाएगा और v dash is equal to v by 3 is the desired result। तो आप देख सकते हैं कि जब इम्पल्सिव फोर्सेज सिस्टम पर एक्ट कर रहे हो तो इस तरह से इम्पल्स की मदद लेते हुए हम लोग फाइनल वेलोसिटी सिस्टम की निकाल सकते हैं। दैट इज द v डैश इज इक्वल टू v बाई 3। तो इस तरह से हम लोगों ने इम्पल्स को पढ़ा। इम्पल्स क्या होता है, इंस्टेंटेनियस इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स इम्पल्सिव कैसे होता है, टेंशन फोर्स इम्पल्सिव कैसे होता है, हर एक फोर्स को हमने 1 बाय 1 पढ़ा है। और लास्ट में हमने एग्जाम्पल करके देखा कि इम्पल्स की हेल्प से कैसे हम लोग सिस्टम की वेलोसिटी निकाल सकते हैं।